السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، جنوری کی 19 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ طالبان حکام نے اگست میں افغانستان کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پہلی اقتصادی کانفرنس میں بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی حکومت کو تسلیم کریں تاکہ افغانستان بینک اثاثوں کو جاری کیا جائے۔ کابل میں ہونے والی ایک روزہ افغانستان اکنامک کانفرنس میں وزیر اعظم اور ان کے نائبین اور افغانستان میں اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ سمیت اعلیٰ سرکاری حکام نے شرکت کی۔ طالبان کے وزیر اعظم ملا محمد حسن اخند نے کانفرنس میں کہا کہ افغانستان بینک کے اثاثے منجمد کرنا انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے عالمی برادری سے افغانستان میں لوگوں کو انسانی امداد فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔ طالبان کے نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفی نے بھی کانفرنس سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی حکومتی اقتصادی پالیسی کی نقاب کشائی کی اور کہا کہ حکومتی اقتصادی پالیسیوں میں نجی شعبے کو فوکس کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی پابندیوں سے افغانستان میں لاکھوں بچے غذائی قلت سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ طالبان افغانستان میں بین الاقوامی برادری کی فلاحی امداد کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار عہد کیا، لیکن اب پھر یقین دلا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی طرف سے امداد کی ترسیل کو ہماری حمایت حاصل رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مرحلے کے بعد افغانستان کو ترقیاتی امداد کی ضرورت ہوگی۔ طالبان کے وزیر خارجہ نے افغانستان کی خطے سے رابطہ کاری پر بات کی اور کہا کہ گزشتہ 5 ماہ میں اس سلسلے میں بہت کچھ کیا گیا ہے۔ افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ڈیبرا لیون نے کانفرنس میں کہا کہ انسانی امداد طویل المدتی حل نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے معاشی مسائل کو بنیادی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے ہمیشہ پابندیاں ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اب جب کہ افغانستان میں امن آ چکا ہے اور سلامتی یقینی ہے تو یہاں سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ لیون نے کہا کہ دنیا کو اس صورتحال پر یقین کرنا چاہیے اور جرأت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں بڑے پیمانے پر معاشی سست روی کے باوجود بدعنوانی سے نمٹنے کی کوششوں کی وجہ سے آمدن بڑھ رہی ہے اور حال ہی میں منظور کیا گیا قومی بجٹ پہلی بار مکمل طور پر قومی محصولات سے مرتب کیا گیا ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان جان کربی نے ایک پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ امریکی حکومت تاجکستان اور ازبکستان میں افغان ہیلی کاپٹروں کے معاملے سے نمٹ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ان طیاروں کو افغانستان نہیں بھیجا جائے گا۔ گزشتہ ہفتے طالبان کے قائم مقام وزیر دفاع نے اپنے پڑوسی ممالک ازبکستان اور تاجکستان کو خبردار کیا تھا کہ وہ فوجی طیارے اور ہیلی کاپٹر واپس کر دیں جو 15 اگست سن 2021 کو ان ممالک میں لے جائے گئے تھے۔ پاکستان کے مرکزی بینک کی طرف سے ملک میں ڈالر کی سپلائی کو مستحکم کرنے کے لیے اسلام آباد اور کابل کے درمیان باہمی تجارت، خصوصاً برآمدات کی ادائیگی ڈالر کے ذریعے کرنے کی شرط عائد کرنے پر کاروباری برادری نے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی کاروباری برادری کے نمائندوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نئی پالیسی پر نظر ثانی نہ کی گئی تو پاک افغان باہمی تجارت کو مؤثر طور پر جاری رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد پاکستان کے مرکزی بینک نے پاک افغان تجارت کے لیے کسٹم ڈکلریشن کے بغیر قابل تبدیل کرنسی یعنی ڈالر وغیرہ کے ذریعے تجارت کرنے کی سہولت 31 دسمبر تک فراہم کی تھی، لیکن بعد ازاں اسٹیٹ بینک نے اس سہولت کو ختم کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان سے بھیجی جانے والی برآمدی اشیاء کے لیے
सिवाय रोज़मर्रा के इस्तेमाल और खाने पीने की चीज़ों की अदायगी अफ़गानिस्तान से लाई जाने वाली गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़रिए ही हो सकती है। लंदन की एक लॉ फर्म ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में मुबैना तौर पर जंगी जराइम के इल्ज़ामात में भारतीय आर्मी चीफ और वज़ीर दाखिला समेत दीगर आला हुक्काम को गिरफ्तार करने की दरख्वास्त दी है। लॉ फर्म स्टॉक वाइट का कहना है कि उन्होंने लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस के जंगी जराइम की यूनिट को इस बारे में कसीर शवाहिद फराहम किए हैं कि किस तरह भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज माकंद निर्वाणे और वज़ीर दाखिला अमित शाह कश्मीर में तशद्दुद, अगवा, समाजी कारकुनों, सहाफ़ियों और शहरियों के कत्ल में मुलव्वस हैं। खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक लॉ फर्म की रिपोर्ट सन 2020 और 21 के दरमियान जमा की गई गवाहियों पर मबनी 2000 बयानात पर मुश्तमिल है। भारत की वजारत खारजा और वजारत दाखिला ने ऐसी किसी रिपोर्ट से लाइल्मी का इजहार करते हुए तबसरे से इनकार किया है। ग्वांटानामो बे में अमेरिका की जानिब से दहशतगर्दों को कैद में रखने और मुकदमे चलाने के लिए कायम किए जाने वाले हिरासती मराकज़ को 20 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस मौके पर ह्यूमन राइट्स वॉच और रेड क्रेसेंट जैसे हुकूक के आलमी इदारे इस हिरासती मरकज़ में मुबैना खिलाफ वर्जियों का अहाता करते हुए यहाँ मौजूद बाकी मादा कैदियों की मुंतकली का मुतालबा कर रहे हैं। ग्वांटानामो बे के इस हिरासती मरकज़ में उन गैर मुल्की मुसलमान मर्दों और नौबालिगों को कैद रखा गया जिन पर आलमी दहशतगर्दी का इल्ज़ाम था। यह मरकज़ अमरीका पर 9/11 के दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस अफराद के लिए बनाया गया था और इसमें रखे जाने वाले ज़्यादातर अफराद अफ़गानिस्तान से गिरफ्तार करके लाए गए थे। ग्वांटानामो बे के क़याम के 20 साल मुकम्मल होने पर ह्यूमन राइट्स वॉच और ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट प्रोग्राम ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट्स में बताया है कि हिरासती मरकज़ में 2 अशरों के दरमियान किस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जाती रहीं और 20 साल के बाद भी वहाँ कई लोग बग़ैर मुकदमा चले कैदोबंद की मुश्किलात से गुजर रहे हैं। वाशिंगटन ग्वांटानामो बे समेत मुख्तलिफ हिरासती मराकज़ में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। रूसी हुक्काम का कहना है कि मॉस्को बड़ी मुश्तरका फ़ौजी मशक़ों के लिए मुल्क के मशरक़ बईद से बेलारूस में गैर मुतय्यन तादाद में फ़ौजी भेज रहा है। ये तैनाती ड्रामेई तौर पर एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख रूसी फ़ौजियों को तक़वियत देगी जो पहले ही यूक्रेन के करीब जमा हैं और जिसके बारे में मगरिब को ख़दशा है कि ये किसी हमले का पेशखेमा हो सकते हैं। रूस ने हमले के इरादे की तरदीद की है और मगरिब से इस बात की ज़मानत का मुतालबा किया है कि नेटो यूक्रेन या दीगर साबिक़ सोवियत ममालिक को अपने साथ शामिल नहीं करेगा या वहाँ हथियार नहीं रखेगा। वाशिंगटन और उसके इत्तेहादियों ने इन मुतालबात को गुज़श्ता हफ्ते मुस्तरद कर दिया था। व्हाइट हाउस ने मंगल को खबरदार किया कि रूस अपने पड़ोसी पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है, जबकि बरतानिया ने टैंक शिकन हथियारों की एक खेप यूक्रेन को फराहम की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने आज बुध को कहा कि वो पुरुम्मीद हैं कि रूस यूक्रेन की सरहद पर कशीदगी को कम करने की कोशिशें सिफारती और पुरअमन रास्ते पर जारी रह सकती हैं, लेकिन इसका हतमी फैसला रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन पर मुनहसर है। अपने दौरे की पहली मंजिल कीव में अमरीकी सिफारत खानों के अमले से बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है और ये कि रूस पहले ही क्या कर चुका है और मज़ीद रूसी जारियत का ख़तरा बहुत ही बुनियादी उसूलों को चैलेंज करता है जो पूरे बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए नुकसानदेह हैं। ब्लिंकन ने कहा कि हमने ये वाज़ेह करने की कोशिश की है कि रूस के लिए 2 रास्ते हैं, सिफारतकारी और बातचीत का रास्ता, जिनमें इख्तलाफात को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश हो सकती है, जबकि दूसरी सूरत में अगर रूस ने जारहियत को फ़रोग़ दिया तो फिर रूस के लिए उसके नताइज होंगे। ब्लिंकन जुमेरात को बर्लिन जाएंगे, जहां वो जर्मन वज़ीर ख़ारजा
एनालिना बैरबेक से मुलाकात करेंगे। वो जुमे को जेनीवा में रूसी वजीर खारजा सरगई लैवरॉफ से मुलाकात में रूस पर जोर देंगे कि वो सरहद पर कशीदगी को कम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। अमेरिका के सदर जो बाइडन सदारती मनसब संभालने का पहला साल मुकम्मल होने पर आज बुध को व्हाइट हाउस में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त पर हो रही है जब उनके एजेंडे के दो अहम हिस्से कांग्रेस में ताअत्तुल का शिकार हैं और कोविड की वबा अब भी अंदरून व बैरून मुल्क तबाही मचाए हुए है। अगरचे बाइडन कांग्रेस के जरिए मुल्क में कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए $1 ट्रिलियन के बड़े पैकेज को मंजूर करा सके हैं, लेकिन अमरीकी सेनेट में उनके $1.8 ट्रिलियन बिल्ड बैक बेटर सोशल सेफ्टी नेट और मौसमियाती तब्दीली के पैकेज की हतमी मंजूरी हासिल करने के लिए व्हाइट हाउस मजीद काम कर रहा है। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ खबरें। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिसके पेश नज़र हुक्काम ने मुख्तलिफ पाबंदियां भी आयद कर दी हैं। हुक्काम के मुताबिक मुल्क में वबा के मुस्बत केसेस की शरह 10% तक पहुंच गई है, जबकि कराची में शरह लगभग 40% है। अमेरिका में सेहत के निगरां इदारे सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने शहरियों को तलकीन की है कि वो कोरोना वबा से मुतासरा 22 मुल्कों का सफ़र करने से गुरेज करें। सीडीसी ने मंगल को कहा है कि इसराइल, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और अल्बानिया में कोरोना केसेस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इन मुल्कों के सफ़र से इज्तनाब किया जाए। सीडीसी की जानिब से अब तक जिन मुल्कों को सफ़र के लिए ख़तरनाक करार दिया गया है, उनकी तादाद 100 से ज़्यादा है। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बहुत मशकूर हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। खालिद हमीद अब इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।